بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 مارچ ہے، سال 2022۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نشانے پر آ گئی ہے۔ سینئر صحافی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان پر گھٹیا حملے، صحافی عامر متین نے نجم سیٹھی کی بینڈ بجائی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں سے بیرون ملک امریکی سفارتکاروں کی ملاقات کی خبر سامنے آئی ہے، اور اس وقت یورپی اور امریکی سفارت خانوں کے اندر کیا چل رہا ہے، عام خبر سے ویڈیو کا آغاز کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت تحریک عدم اعتماد نے پاکستان کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ یورپی یونین کے مختلف سفارت خانے اور اسی طرح پاکستان کے اندر امریکی سفارت خانہ متحرک ہے، وہاں پر اسپیشل ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں۔ لمحہ بلمحہ کیا رپورٹس ہیں، اپنے ملکوں کو وہ رپورٹس بھیجی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر آئی ہے، چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جس طریقے سے متحرک ہوئی ہے، اور پھر کچھ امریکی سفارتکار اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی، جس پر حکومت پاکستان نے ایک اعتراض کیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ایک مرتبہ یہاں پر تھم گیا۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ بیرون ملک اپوزیشن کے مختلف سیاستدانوں سے کچھ سفارتکاروں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ روزنامہ جنگ کی رپورٹ ہے، جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر امریکہ اور یورپی ممالک نے نظریں جما لی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد کی صورتحال کی مانیٹرنگ کے لیے امریکی سفارت خانے میں خصوصی سیل بھی بنا دیا گیا ہے، جبکہ دیگر ممالک کے سفارت خانوں نے بھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپنے ممالک کو رپورٹس بھجوانا شروع کر دی ہیں۔ سفارتکاروں کی پاکستانی سیاستدانوں سے ملاقاتوں پر پاکستان کے رد عمل کے بعد امریکی سفارتکار کی بعض سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بیرون ملک ملاقاتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اب یہ روزنامہ جنگ، آپ کو علم ہے جن چینلز پر اس وقت الزام ہے، یعنی 3 چینل جنہوں نے پیسہ پکڑا ہوا ہے باقاعدہ حکومت کے خلاف ایک مہم کے لیے، اور باقی جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی دیکھا دیکھی بریکنگ نیوز کے اندر ان کو بھی وہ خبر دینی پڑتی ہے۔ ان کے اندر آپ کو علم ہے جنگ اور جیو کا نام آتا ہے، اور جیو نیوز کا حکومتی جو اہلکار ہے انہوں نے باقاعدہ بائیکاٹ بھی کر رکھا ہے، چونکہ زرداری اور شریف مافیا کا ٹاؤٹ کے طور پر اس چینل کو لیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر یہ رپورٹ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ امریکی سفارتکار کی بیرون ملک جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا موقف سامنے آتا ہے۔ اب جس طریقے سے یہاں پر کچھ صحافیوں نے اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر وہ صحافت سے نکل کر کچھ سیاسی جماعتوں کے زبردست طریقے سے ورکر بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر پورا طبقہ ملامتی ہے کس طرح وہ سندھ ہاؤس کے اندر جا رہا ہے، وہ کوئی اخلاقی حدود کی بات نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جن الیکشن جو ہے جس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ لڑ کر آئے ہیں پہلے استعفیٰ دیں اور اس کے بعد آپ ووٹ لے کر آئیں بے شک دوسری پارٹی سے۔ اب حامد میر ہے، کتنی منافقت ہے کہ ایک وقت کے اندر اس کا موقف تھا جب نون لیگ کے ایک بندے نے استعفیٰ دیا تھا، تو اس وقت ان کا یہ ٹویٹ تھا جس کے اندر حامد میر 9 اکتوبر 2020 کا یہ ٹویٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ یہاں پر چونکہ نون لیگ کے ایک باغی رکن نے پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو اس کی بنا پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بالکل درست فیصلہ ہے، جو بھی اپنے پارٹی کی پالیسی کے ساتھ نہیں چل سکتا اسمبلی سے استعفیٰ دے اور اپنی نئی پارٹی کے ٹکٹ پر جو ہے وہ باقی الیکشن لڑ کر واپس اسمبلی میں آ سکتا ہے تو آ جائے۔ اب یہ وہ ٹویٹ تھی، لیکن اب ان کا رویہ بالکل بدل چکا ہے، اور اب ان کی منافقت کی انتہا ہو چکی ہے، اور یہ اب وہی چیز ہارس ٹریڈنگ کی باقاعدہ جو ہے وہ پرموشن کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی جو نجم سیٹھی ہے اس نے بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں اور کچھ عرصے سے، اور اس کا جو معاملہ کیا ہے اصل میں وہ تو عامر متین صاحب جو ہے، حالانکہ وہ بڑے نقاد ہیں حکومت کے، عامر متین اور رؤف کلاترا وہ ہر حکومت کے نقاد ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو تمام پارٹیوں سے تقریباً گالیاں پڑتی ہیں۔ اب نجم سیٹھی جو ہے اس نے بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں اور پچھلے 1-2 سال کے اندر بڑی فیک نیوز دی ہے، اور اب جو ہے اس کو اتنا غصہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ صحافت ہے، بدماشی ہے، بے شرمی ہے، گھٹیا پن ہے۔ یہ فیصلہ ذرا آپ خود کیجئے گا
नजम सेठी जो है उसने कहा एक प्रोग्राम के अंदर, उसने कहा कि इमरान खान इस्तीफा दे दे वरना उन्हें जूतियां मार कर निकाला जाएगा। अब ये इस तरह की जो घटिया हरकत है, एक वजीर आजम के हवाले से आपकी नफरत, यानी आप नून लीग के टाउट हैं, पीसीबी के चेयरमैन बने, आपकी बेगम जो है वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ी, पहले नून लीग के साथ भी ताल्लुक था और अब जो है वो पीटीआई में शामिल हुई, लेकिन कुछ जो खाने वाला प्रोग्राम है वो आपका नहीं चल सका। तो अब इस सतह पर ये लोग आए हैं और अब देखिए किस तरह के लोगों का सलीम साफी इंटरव्यू कर रहा है और ये पूरा एक जो बयानिया बनाया जाता है, इस पर आमिर मतीन जो है उन्होंने उनको बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है। वो कहते हैं कि सेठी साहब वो आदमी है जिसने फारूक लगारी को कायल किया कि बेनजीर हुकूमत तोड़ने पर इसने कायल किया, फिर ये एहतसाब के पहले मामे बने और इनको इसरार था कि 2 साल तक कौमी हुकूमत बनाकर खूनी एहतसाब हो। अब ये जमहूरियत के मामे हैं, यही पाकिस्तान की कहानी है, लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि इनकी बेगम जुगनू मोहसिन ने पीटीआई को वोट दिया इस उम्मीद पर कि उनको कुछ मिलेगा, मगर इमरान खान इतना बेलिहाज आदमी है कि उसने इनको कुछ नहीं दिया। सो अब ये शिकायत पर आ गए हैं इमरान खान एक नालायक वजीर आजम होगा, मगर आपके गिले और हैं। जूतियां तो आपको नवाज ने भी मारी थी, फिर आप परवेज मुशर्रफ के रोशन ख्याली के मामे बन गए और माफिया सैफमा के गौल लेकर, ये सैफमा एक इनका इदारा है जिसको मुमकिना तौर पर मुबैना तौर पर गैर मुल्की और इंडियन फंडिंग होती है, और वो कहते हैं सैफमा के गौल लेकर सहाफियों की पूरी नस्ल को आपने गुमराह किया। अब आप फिर बैरूनी दोस्तों के एजेंडे पर जमहूरियत के मामे बन गए। आखिर आप क्या चाहते हैं? कोई असूल है? क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग हाजिर है, ये नहीं चलेगा। इमरान खान की बहुत सी खामियां और शायद इसकी निशानदेही सबसे ज्यादा हमने की है। उसने हमारे प्रोग्राम बंद करवाया, हमने अपनी लड़ाई जारी रखी, मगर आपका क्या एजेंडा है ये जरा समझा तो दीजिए। अब ज़ाहिर है एक वजीर आजम का नकाद जो साफी है उसने सही आईना दिखाया है कि ये फॉरेन फंडिंग पर पड़ने वाले चंद लोग ये जमहूरियत के लिए नहीं, आजादी इदारे राय के लिए नहीं है, बल्कि इनके जाती मसले हैं। कोई पैमरा का चेयरमैन बनता है, कोई पीसीबी का चेयरमैन बनता है, कोई सेनेटर बनता है, कोई किसी महकमे की जो है वो वजारत लेने के चक्कर में होता है। तो ये टाउट किस्म के लोग बाज़ाब्ता तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ जो है एक महाद बने हुए हैं और सहाफत को छोड़कर ये पूरी तरह जो है वो अपनी असलियत जो है उस पर आ गए। अब जो चंद साफी हैं वो मुसलसल इस पर इशारा कर रहे हैं कि ये जो अपोजिशन की अदम एतमाद की वजीर आजम के खिलाफ तहरीक है, इसके पीछे मुमकिना तौर पर कुछ ऐसे ख्यालात हैं, कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं, कुछ इख्तलाफात हैं जिनकी बिना पर यह सारा मामला आया है। और अपोजिशन को जब कहा जाता है कि इस मामले में आप अच्छे बच्चे बन जाए तो फौरन वो इस चीज को कबूल कर ली जाती है। हालांकि एक बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, और कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद को टारगेट किया जाता था। अब ये भी इल्जाम आ रहा है कि चूंकि ये खतरा है बाद एलिमेंट जो है उनको कि जनरल फैज हमीद जो है वो किसी तरह आर्मी चीफ ना बने, तो अंदरूनी तौर पर इस हवाले से भी बात की जाती है। लेकिन इस मामले को यकीनन हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को क्लियर करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर चूंकि शहीन साहबाई साहब वो कहते हैं कि मेरा डरावना ख्वाब मौलाना सदर, पेट फाड़ने वाला पीएम, 10% का बेटा फॉरेन मिनिस्टर, बाकी सारे ब्लैक मेलर हर जगह फिट, सेठी क्रिकेट के शाह, मौलाना का बेटा क्रिकेट कप्तान, लिफाफे खुशहाल, सब जज जर्नैल जिन्होंने क्यों निकाला था अपना स्याह चेहरे लेकर कोनों और बंकर में छुपे हुए, क्या ये होगा नया पाकिस्तान? बोले, ये उन्होंने एक राय दी है। अब इस पर जो है अरशद शरीफ जो है उन्होंने भी कुछ दिनों से वो सवालात उठा रहे हैं और वो इशारातन ये बात कर रहे हैं कि इसके पीछे मामला गड़बड़ है, ये पूरी जो अपोजिशन की तहरीक है। वो कहते हैं कोई तो है जो डुगडुगी बजा रहा है। पार्लियामेंट लाजज पुलिस कार्रवाई के बाद रातों रात मौलाना की एहतजाज की कॉल वापस, 23 मार्च की लॉन्ग मार्च की महीनों पहले दी गई पीडीएम की कॉल वापस, ओआईसी इजलास को धमकी और फिर धमकी वापस, बाकी खेल जारी रखो, नाचने को तो सब तैयार हैं, डुगडुगी की बात है। अब अरशद शरीफ जो है वो भी वादे इस तरीके से इशारा कर रहे हैं कि जैसे इस अपोजिशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर इस वक्त नाच रही है। अब ज़ाहिर है इसको क्लियर करना हमारे इदारे हैं, एहतराम है, लेकिन जिस तरह का खेल है और आपको इल्म है
अपोजिशन के जो रहनुमा है वो चंद महीने पहले तक जो स्टेटमेंट्स दे रहे थे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, शायद खक्का नवासी हूँ, राना सनाउल्लाह हूँ, और सब ये कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाए बगैर कामयाब नहीं हो सकती। अब मामलात क्या है ये एक अलहदा है। अब कामरान खान जो है वो सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। वो कहते हैं हसास बात, हिम्मत करके इस वीडियो पैगाम में कौम को आगाह कर दिया है। जारी तबाहकुन सूरत हाल बुनियादी वजह इमरान खान की शदीद गैर एलानिया ख्वाहिश के मखसूस शख्सियत को जनरल बाजवा जानशीन की हैसियत से तैनात करें। बजात और नून लीग को शदीद तशवीश है, इदारा भी मुस्तरब है, गो देर हो गई, मसले का हल मफाहमत की बुनियाद पर बन सकता है। अब ये भी यही मामले की तरफ जो है वो सीनियर सहाफी ज़हर है वो बात कर रहे हैं कि शायद वजीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है किसी शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ लाने की, और इस मामले पर ज़हर इख्तलाफ है और इसकी वजह से ये सारे मामलात जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हटाना चाहती है, ये भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो मोईद पीरजादा हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ऐसे ही लगता है, और चूंकि मादी के अंदर हमारे इदारों का किरदार रहा है और हम ये उम्मीद करेंगे कि इदारों का इसके अंदर किरदार ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि इस पूरे मामले को बड़ा अच्छे तरीके से कुदरती एक फितरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। यानी पहले इत्तेहादी जो है उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हुकूमत से अलहदगी का बयान जारी नहीं किया, वो कभी इधर कभी उधर। ये एक ऐसा जो है वो उन्होंने एक जो है वो अपना तासर दिया है कि हम जा सकते हैं ताकि हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनको तोड़ना आसान हो, और फिर चंद लोग जो है वो टूटे हैं, पीटीआई से अलहदा हुए हैं, और अब इत्तेहादी अगर हो जाएंगे और ये पूरा जो एक गेम प्लान है उस पर अमल दरामद होता है तो ये एक मंसूबा जो है एस्टेब्लिशमेंट या इदारों पर इसका इल्जाम नहीं आएगा, चूंकि फितरी तरीके से एक पूरी तब्दीली जो है वो आई है। और बाद जमातों पर चूंकि इल्जाम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती हैं, तो इसलिए वो इल्जाम से बच जाएंगी कि देखें उनके अपने लोग छोड़ गए हैं तो इत्तेहादियों ने भी छोड़ दिया है, लिहाजा ये सारी जो तब्दीली है इसको नेचुरल रंग देने की कोशिश की गई है। तो वो भी इसी तरफ जो है वो इशारा उस वक्त कर रहे हैं। अवाम के अंदर भी इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है फखरुर रहमान एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े वो प्लेटफॉर्म जो हैं बीबीसी से लेकर पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उन पर काम कर रहे हैं और बड़ी अंदर की खबरें अक्सर ये देते हैं। वो कहते हैं कि रजीम चेंज इन पाकिस्तान, पीएम इमरान खान हैज बीन सबमिटेड सॉलिड एविडेंस, ऑपोजिशन हार्स ट्रेडिंग, इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट्स आर क्लियर, फॉरेन funded regime change is a national security issue. There has been an important meeting. President PM Imran Khan, Army Chief and intelligence heads. PM want action. यानी वजीर आज़म इमरान खान ने जो 4 की बड़े लोगों की मीटिंग हुई है वो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ बड़ी आम मालूमात उनके सामने पेश की हैं कि अपोजिशन तहरीक के पीछे क्या मामलात है, फॉरेन फंडिंग है, ये रजीम चेंज का एक हिस्सा है जो सारी ये गेम की जा रही है, और उसके खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन का ये डिमांड की है। तो अब इस तरह एक सीनियर सहाफी और भी इस तरह के काफी इस पर सवालात उठा रहे हैं। यकीनन अब या तो हुकूमत ने ये मामला क्लियर करना है कि इसके अंदर, ताकि इदारों के खिलाफ जो एक नफरत का माहौल है वो पैदा ना हो। अगर इस तरीके से ये एक तासर कायम होता है मजीद कि इस पूरी तहरीक के पीछे अपोजिशन जिस तरह न्यूट्रल का राग अलाप रही है और अचानक वो अच्छे बच्चे बन गए हैं और तारीफें करना शुरू हो गए हैं और बूट की पालिश करना शुरू हो गए हैं, तो यकीनन इससे अगर आवाम के अंदर ये तासर फैल जाता है तो एक बड़े सवालात जन्म लेंगे और बड़ी तनकीद होगी। इदारे और आवाम अगर आमने सामने हो तो यकीनन ये मुल्क का एक बड़ा नुकसान होता है। अब वजीर आज़म इमरान खान को अलहदगी क्यों यानी चाहते हैं, ये सारी चीज़ों पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि इदारों का इसके अंदर किरदार नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम की अपने इदारों से ये मोहब्बत है, इसको बरकरार रहना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं तो यकीनन ये इस तरह पहले भी कई वाकयात हो चुके हैं। हुकूमत को और इदारों को इस हवाले से क्लियर करना चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।